Hello everyone, welcome back to e-learning classes of PNMRC High School. As you all know, we are doing chapter number 6 of our science, which is changes around us, and we studied about the topic reversible and irreversible. And today we are going to start with our remaining activities and remaining explanation of the topics. So, I would like to request you all to open your textbooks and come on page number 49 so that we can start with our explanation. Before starting with today's explanation, let us take an overview of the topics which we studied in our previous video. The topic was irreversible changes. Changes that cannot be reversed are called irreversible changes. This change is permanent. You cannot get the original substance from the irreversible change. This means कि एक बार अगर आपने वो चेंज कर दिया और अगर वो वापस से रिवर्स होकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता है, उसको हम irreversible change बोलते हैं. For example, juice making. If you are making a juice from an orange, you cannot get the orange back. This is irreversible change. Next is making curd from the milk. If you are making a curd and if curd is made, then you cannot get the milk back. So this is also known as irreversible change. I hope you all are clear with the topic reversible as well as irreversible. So let's start with activity 7, which is on page number 49. Activity 7. Take a small candle and measure its length with a scale. Now you have to take a candle and then you have to take a measurement using a scale. Now fix it at a suitable place and light it. Now you have to fix the candle and you have to light it up. Let it burn for some time and you have to observe burning the candle. Now blow out the candle and measure its length again. Now you have to blow the candles and again you have to measure the length of the candle as shown in figure 6.8. Can the change in the length of the candle be reversed? Now the change you have observed or change you have noticed in the candle, can this be reversed? If we were to take some wax in a pan and heat it, can this change be reversed? This means if you take the wax and then again you heat it up in a pan, then can it be reversed? Okay. Now activity 7 में आपको बोला गया है कि आपको कैंडल लेनी है और उस कैंडल को जलाना है उसका मेजरमेंट लेके, और फिर जब आप उसका मेजरमेंट लेके उसको जला रहे हो उसको थोड़ी देर जलने देना है. फिर आपको वो कैंडल ब्लो कर देनी है और वापस से उसका मेजरमेंट लेना है. तो क्या आपको उस लेंथ में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, वो आपको मेंशन करना है या नोट करना है. फिर आपको क्या करना है कि ये जो कैंडल जो जल गई और जिससे उसकी लेंथ कम हुई, क्या वो वापस से रिवर्स हो सकती है. अगर हम उसमें से थोड़ी वैक्स ले लें और उसको पैन में लेके हीट करें तो क्या वापस से वो जो कैंडल है वो रिवर्सिबल हो सकती है या अपने फॉर्म में आ सकती है, जैसे आपको फिगर 6.9 में दिखाया है. Repeat activity 7 with an incense stick. Now you are going to repeat the same activity using incense stick. Incense stick का मतलब होता है अगरबत्ती. Wait till it burns away completely. You have to wait till the incense stick burns completely. What are the changes that occur in the incense stick? आपको वेट करना है जब तक पूरी अगरबत्ती जल जाए, और जैसे ही वो जल जाए उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या चेंजेस आपको दिखे. The stick burns to produce some new material. अब जो इंसेंस स्टिक थी दैट इज़ जो अगरबत्ती थी वो जल के उसने एक न्यू मटेरियल फॉर्म किया. दीज आर ऐश एंड सम गैस. और वो कौन सा मटेरियल है, आपने देखा होगा अगरबत्ती जलने के बाद जो ऐश रह जाती है और उसमें से जो धुआं निकलता है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ गैस. We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. हम गैस को देख नहीं सकते, वो जो धुआं निकलता है उसे ऑब्जर्व
मतलब बेसिकली कर सकते हैं, बट आप कांस्टेंट उसे नहीं देख सकते हो, पर जो इंसेंस स्टिक में से स्मेल आती है आप उसे सेंस तो कर ही सकते हो। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? अब क्या आप उस ऐश में से वापस से अगरबत्ती बना सकते हो? एंड वॉट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैचस्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? और उस चेंजेस का क्या जो आपने अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस ली होगी, तो अगर आपने वो माचिस जलाई होगी तो वो माचिस भी छोटी हो गई होगी। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? दिस मीन्स अभी तक के चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि कैसे चेंजेस एक ऑब्जेक्ट में या कोई मटेरियल में हमने देखे हैं या किए हैं। बट वॉट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेज आर मिक्स टुगेदर? मतलब अगर हम दो सब्सटेंस को एक साथ मिक्स कर देते हैं और उसमें चेंजेस आता है, उसका क्या? इन चैप्टर 4 वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था या और हमने आप लोगों को मैंने बताया भी था, मे भी आपने करके देखा हो कि हमने सॉल्ट को क्या किया था, पानी में डिज़ोल्व किया था। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? तो क्या आपको क्या लगता है कि वो सॉल्ट या पानी में कुछ चेंज हुआ था? इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? कैन यू रिवर्स दिस चेंज विच हैपेंड? वेट, in chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water. चैप्टर 5 में हमने पढ़े थे काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हम नमक में से पानी या तो पानी में से नमक को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सो कैन वी से दैट चेंज ड्यू टू डिज़ोल्विंग वाटर इन सॉल्ट इन वाटर कैन बी रिवर्स्ड? तो क्या हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि हमने अगर सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व कर दिया है तो वो वापस से रिवर्स हो सकता है? पहेली आस्क्ड इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। अब पहेली आपको पूछ रही है कि आपने कभी दही जमा हुआ देखा है? आपकी मम्मा किचन में हमेशा दही जमाती होंगी। अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क। हम थोड़ा सा दही लेते हैं और उसको थोड़े से वार्म मिल्क में, मतलब कोसा ज़्यादा बॉइल्ड मिल्क नहीं, एकदम हल्का सा वार्म मिल्क में उस दही को डाल देते हैं। द मिल्क इज स्टेट एंड इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। फिर हम क्या करते हैं, वो वार्म मिल्क में दही डालने के बाद उसे हिला के एक साइड में ढक के रख देते हैं थोड़े घंटों के लिए। In a few hours the milk changes into curd. Can this change be reversed? आप देखोगे थोड़े ही टाइम में वो जो मिल्क था वो क्या हो गया है, कर्ड में रिवर्स हो गया है, कर्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो क्या आप वो कर्ड को वापस से मिल्क बना सकते हो? आंसर इज नो। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or mixing it with some other substance. दिस मीन्स ऐसे थोड़े बहुत मैथड्स हैं या ऐसे थोड़े बहुत तरीके हैं जिससे हम थोड़ा बहुत हीट करके या एक सब्सटेंस में कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड करके चेंजेस ला सकते हैं। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमने ये भी देखा कि कोई कोई चेंजेस ऐसे हैं जो रिवर्स हो सकते हैं और कोई कोई चेंजेस ऐसे हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। There must be many other ways of changing things around us. और ऐसे ही काफ़ी सारे और भी तरीके हो सकते हैं हमारे आसपास जिससे चेंजेस हो सके। Is it possible that some of them could be reversed? Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. मतलब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो रिवर्सिबल है और काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो इरिवर्सिबल है। तो अगर हमें ग्रुप बनाना है किसी सब्सटेंस या मटेरियल का तो हम दो ग्रुप्स बना सकते हैं। एक ग्रुप ऐसा जिसमें सारी रिवर्सिबल मटेरियल्स या सब्सटेंसेस हो और दूसरा ग्रुप ऐसा जिसमें सारे इरिवर्सिबल मटेरियल्स या सब्सटेंसेस हो। रिवर्सिबल मतलब आप उस चीज़ को अपनी चेंज के बाद ओरिजिनल फॉर्म में या अपने फॉर्म में वापस ला सको। वैरेज इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि वापस से अगर आपने वो ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया तो आप उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते।
In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be done and the way these can be grouped. जैसे जैसे आप आगे की बड़ी क्लासेस में जाओगे वैसे वैसे आप और भी ज़्यादा तरीके देखोगे जिससे ये चेंजेस हो सकते हैं और अलग अलग ग्रुप्स बन सकते हैं. I hope you all are clear with reversible as well as irreversible. So my dear students, here we complete the explanation of chapter number 6, changes around us. Now you all have to read this chapter on your own at your home, and if any doubt you can mark it on and ask me. And now the next topic of this chapter would be PDF, which you have to copy in your notebook in neat and clean handwriting. So we will meet very soon with our new chapter. Till then, keep learning, keep completing your notebooks, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.